Hello students, welcome back to Logic Simplified. In our flowchart series, we are taking second video today and here we will learn iterations. Iterations means what? Loops. And if you are following my algorithm videos, you must have seen that first algorithm we have done to display your name 5 times, right? क्या सीखा था? 5 बार नाम डिस्प्ले करना है. And the same thing we'll take here using algorithm. Let's start. It's very simple. Pay attention. Start and stop. That is my beginning and ending target. So from here, let's start. Ellipse से शुरू करेंगे. Name को डिस्प्ले करना है 5 times. So 5 times के लिए मेरे पास एक काउंटर होना चाहिए. काउंटर का मतलब क्या होता है? Let's say C is equal to 1. It is just a number. Initially C को किससे start किया? 1 से. We'll take a decision here. Is C less than equal to 5? बच्चों, if you remember, this is known as decision box. C का वैल्यू कितना चेक कर रहे हैं? क्या C का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है? डिसीजन बॉक्स में कैसे रहता है? यस और नो. सो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है? यस, बिकॉज माई C इज लेस देन इक्वल टू 5. ओके, सो इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 5, व्हाट टू बी डन? आई हैव टू प्रिंट माई नेम. Suppose I want to display print logic. This is displayed. After this, what I will do? I will increase C by 1. इसके पीछे लॉजिक समझो. C की वैल्यू पहले 1 है. 1 is less than equal to 5. That's true. Print logic. Output will be like this. एक बार लॉजिक डिस्प्ले हो गया. Then C is equal to C plus 1. Now the value of C is 2. यहाँ से हम फिर से इसको यहाँ चेकिंग के लिए लेके जाएंगे. क्या C की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है? मैं आपके लिए यहाँ पे C की वैल्यूज भी साथ में लिखती जा रही हूँ. C पहले 1 था, यहाँ से 2 हुआ. 2 लेस देन इक्वल टू 5. अगेन माई कंडीशन इज ट्रू एंड इफ इट इज ट्रू विल गो दिस साइड. सो हियर आई एम प्रिंटिंग व्हाट? लॉजिक अगेन. फाइन, दिस इज 2 times. C is equal to C plus 1. Every time increment will be done in the previous value. So पहले 2 था, now it will become 3. Come here again. We are again checking here 3 less than equal to 5. Yes, go this side. Then again it is logic. Increment the value of C. Now it is 4. 4 less than equal to 5. Again go in the right left hand side. Yes वाला side. Logic display किया. C is equal to C plus 1. My value of C will become 5. 5 less than equal to 5. Still yes. So the 5th time logic is displayed. Now what will happen? Your C will become 6. And when we come here, 6 less than equal to 5 condition is false. So we are going in this direction. Means my job is done. Right? So if your job is done, what to be done? Stop. Because अपना टारगेट क्या था? लॉजिक को या किसी भी नाम को 5 बार डिस्प्ले करना. एंड सी द 5 times वी आर डन. इफ यू वांट टू मेक इट 15 times, जस्ट राइट डाउन हियर 15. इफ यू वांट टू मेक इट 50 times, जस्ट मेक इट 50. हो गया. सो दिस इज वेरी सिंपल. अगेन फास्ट फॉरवर्ड एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो हमको हर लूप में काम आएगा. यहाँ लूप कहाँ है इन दिस प्रोसेस? दिस इज नॉन एज इनिशियलाइजेशन. दिस इज कंडीशन. This is the statement which I have to repeat again and again, and this one is known as my update statement or action statement. Why update or action? Because इसी statement की वजह से आप condition को achieve करोगे. अगर C is equal to C plus 1 लिखना भूल जाते हो या नहीं करते हो, प्रोग्राम में रह जाता है, तो क्या होगा? C की वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होगी. आप जब भी चेक करोगे C 1 ही रहेगा. 1 less than equal to 5, that is always true. You will be in infinite loop.
and it occurs to runtime error. आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा जहां पे हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े थे, वहां मैंने बताया था रन टाइम एरर क्या होता है. सो रन टाइम एरर इज व्हाट, आप एक ऐसे लूप में फंस गए हो जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, और वो कब होगा, जब अपडेट स्टेटमेंट नहीं है या अपडेट स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है. So this is the first flow chart related to iterations where we are displaying logic 5 times. Logic के साथ साथ अगर मैंने यहाँ पे C को भी display किया होता, so my output should be 1, 2, 3, 4, 5. It will be display all the values of C. So 1, 2, 3, 4, 5 and with all that logic is there. So what I did, मैंने उस variable को भी display किया है. First program very easy. Let's take the second example. Where I will take a number from user. ये भी आप एल्गोरिदम में देख सकते हो, एक नंबर यूजर इनपुट करेगा और आपको उसका टेबल डिस्प्ले करना है. पहले हम उसका थ्योरी समझते हैं. सपोज यूजर ने एक नंबर डाला 5 इन n. ओके, सो जनरली टेबल कैसे चलती है, 5 into 1, 5 into 2 till 5 and the last you multiply by 10 and the result goes like this. करेक्ट. सो मुझे एक तो n चाहिए जिसमें मैं नंबर इनपुट करवाऊंगी, एक मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, और एक मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें मेरा रिजल्ट आएगा. ओके, यहां पे क्या हो रहा है, जिस नंबर में आप वैल्यू डालोगे वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उस वेरिएबल को टच भी नहीं करना है. और ये तो रिजल्ट है, ये टोटली डिपेंड करता है इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन पे. तो इसका मतलब वेरिएशन कहाँ होगा, आई में होगा. राइट, आई कहां से शुरू करूंगी, 1 से, और कहां पे एंड करूंगी, 10 पे. यहां मुझे अपना लॉजिक तो मिल गया, अब इस पे वर्क करना बाकी है. लेट्स स्टार्ट अगेन. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमको यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी है तो वो हम पैरेललोग्राम में लेते हैं, इनपुट n, एंड मैंने वहां पे i वेरिएबल से समझाया है, तो यहाँ पे मैं आपको i से समझाऊंगी. लेट i इज इक्वल टू 1, और एक हमारा k वेरिएबल जिसमें मैं रिजल्ट लूंगी उसको हम इनिशियली 0 ले सकते हैं. देन कंडीशन विद योर डायमंड बॉक्स, देयर यू कैन चेक. अभी मेरे को कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, 10. वाई 10? बिकॉज टेबल जनरली लास्ट जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 10 से होता है. सो i लेस देन इक्वल टू 10. अगेन वी आर हैविंग yes or no options. If it is yes, then what to be done? We have to do one calculation. What is that? K में क्या जाना चाहिए बच्चों, K should be n multiplied by I, and after this your I should be increased by 1. Let's understand. The value of I is 1, which is true. Condition is true. K is equal to, ये मेरा n है, ये मेरा I है, and this is my K. So n is, let's assume the value of n is 5 and value of I is 1. So K क्या बन जाएगा, K will become 5. उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं. और I is equal to I plus 1, यानी I कितना हो गया, 2. After displaying, we will again go to check the condition. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, मुझे कंडीशन बॉक्स में आना है, डिसीजन बॉक्स में आना है, डायमंड बॉक्स में आना है, यहाँ नहीं जाना है. अगर यहाँ चले गए तो I फिर से 1 हो जाएगा, रॉन्ग. वैल्यू ऑफ I इज व्हाट, 2, लेस देन इक्वल टू 10. यस, कम हियर. K इज इक्वल टू n इंटू I. n का वैल्यू चेंज ही नहीं किया, n इंटू I, दैट इज 5 इंटू 2, इट विल बिकम 10, एंड उसको डिस्प्ले कर दिया. I को कितने से इंक्रीज किया, 3. नेक्स्ट टाइम, सो इन दैट वे इट विल गो ऑन. लेट्स गो टू 9 डायरेक्टली. सो 9 लेस देन इक्वल टू 10, करेक्ट. K is equal to n into 9. This is my n, this is my I, and the result will be 45. Increase I by 1, now it will become 10. 10 is still less than equal to 10, that's true. So K will become 50. Now once you are making the value of I as 11, your condition will become false, no, and here you can stop. Here, this is the part where your statements are repeating. This is your update statement.
This is your simple statement where you are calculating and here you are displaying the value, right? So this is my calculation, updation, display, and this is the repetition part. I hope it is very much clear because the same program we have done in algorithms also. Now let's jump to the third one where we have to display direct. See, जब आपको direct display करना है ना, वहाँ user से कोई input नहीं लेना है. So next question था display all the odd numbers such as 1, 3, 5. So हमारा क्वेश्चन था odd numbers from 1 to 50 मीन्स कोई यूजर इनपुट नहीं है, तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है. बट इसमें हमारा अपडेट स्टेटमेंट कैसे चेंज होगा वो देखना है, राइट? तो इनपुट कुछ भी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी इज इक्वल टू 1. 1 से क्यों शुरू कर रही हूँ? क्योंकि ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने. एंड अगेन माई डायमंड बॉक्स, माई डिसीजन बॉक्स, C लेस देन इक्वल टू 50 क्वेश्चन मार्क. हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप यहाँ से भी यस बना सकते हो, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस रहेगी. अगर यस है तो क्या करना चाहिए? डिस्प्ले करना है उसको. प्रिंट C. सो प्रिंट C मीन्स व्हाट विल बी डिस्प्लेड? 1. यहाँ पे जब आप अपडेट करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको 1 से अपडेट नहीं करना है, इसका अपडेशन लेंगे हम +2 से. वाई +2? बिकॉज मुझे ऑड नंबर डिस्प्ले करने, तो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर मुझे मिलेगा 3 पे. अगेन जॉइन इट हियर. सो 1, आफ्टर दैट आई विल गेट 3, देन 5, देन 7 एंड टिल दैट आई विल गेट 47. सो 47 इज लेस देन इक्वल टू 50, displayed. 49, it is also less than equal to 50, print it. Now as it will become 51, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे कंडीशन होगी false, this part and stop. Now the question arises, अगर ये even number के लिए होता तो मैं यहाँ पे c is equal to 2 लगा देती. In that case it will start like this 2, 4, 10, 10. अगर मेरा क्वेश्चन होता कि अगर मुझे इसमें सम चाहिए, डिस्प्ले तो करना ही है और साथ ही साथ आई हैव टू डिस्प्ले सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स. आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे आपने प्रिंट किया वहाँ आप इसको अपडेट करने से पहले s इज इक्वल टू s प्लस सी, यानी s एक वेरिएबल ले लो, उसमें उनको ऐड ऑन करते जाओ और उसके बाद ही c को चेंज करो. लूप से जब बाहर निकलोगे, लूप से बाहर निकलते वक्त आपके पास एक s रेडी हो जाएगा विच इज हैविंग सम. ये मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इसी के साथ समझाने की. अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे पूछो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको फिर से अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी कि सम कैसे कैलकुलेट किया था. C डिस्प्ले हुआ है. सपोज ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो 1 डिस्प्ले हुआ, राइट? s इज इक्वल टू s प्लस सी. सपोज द वैल्यू ऑफ s इज इनिशियली 0, तो 0 प्लस 1 इट विल बिकम 1. c इंक्रीज होके 3 बना, ऊपर जाएगा. 3 इज लेस देन इक्वल टू 50 डिस्प्ले होगा. s इज इक्वल टू s प्लस सी. बस यही स्टेटमेंट समझने वाला है. s की ओरिजिनल वैल्यू इज 1, देन प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4. नेक्स्ट प्लस 5, लाइक दिस इट विल गो ऑन. आई होप ये समझ में आया है. इफ नॉट प्लीज लेट मी नो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कोई भी क्वेरी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन. आई होप ये बेसिक्स तीनों प्रोग्राम्स आपको समझ में आए होंगे. एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक सम मोर कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स. बट बेसिक फ्लो चार्ट जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आएगा. ये तीनों का प्रैक्टिस करो. मैंने इवन के लिए समझाया तो आपको ऑड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऑड के लिए समझाया तो इवन की करो. जैसे मैंने अभी अब सम निकालना सिखाया, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा. थिंक फॉर दैट. एंड इफ देर इज एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क. बाय द टाइम स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.